حوصلہ رکھیں، آپ کی دنیا میں ہلچل مچ رہی ہے، آپ کو ہر طرف سے کھینچا جا رہا ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، مشکلات مسلسل آپ کو گرائے جا رہی ہیں۔ ایک طرف فتنے تو دوسری جانب آزمائشیں، تھکاوٹ اور مایوسی کی بوجھ تلے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن غور سے دیکھیں، ایک مضبوط اور اٹوٹ رسی آپ کو سہارا دینے کے لیے پھینک دی گئی ہے۔ اب اس پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا آپ کا کام ہے۔ قیس ابن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا تو ایک نیک خوبصورت منکسر مزاج آدمی داخل ہوا اور 2 رکعت ادا کرنے لگا۔ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے کہا، یہ عبداللہ ابن سلام ہے، اہل الجنہ میں سے ایک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں اس کے پاس گیا اور کہا، کیا وہ آپ ہیں جنہیں یہ لوگ جنتی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں کو وہ نہیں کہنا چاہیے جس کے بارے میں انہیں یقین نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نے خواب دیکھا۔ اور یاد رہے کہ عبداللہ ابن سلام مدینہ میں ایک بڑے ربائی تھے جو بعد میں اسلام کے عظیم ترین علماء میں سے ایک بنے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا اور اس خوبصورت وسیع باغ کے وسط میں ایک کھمبا تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک گرفت ہے، تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اوپر چڑھو اور اس گرفت کو تھام لو، لیکن میں نے کہا، میں وہاں تک کیسے جاؤں؟ اچانک میرے نیچے ایک فرشتہ آیا اور مجھے تیز ہوا کی طرح اوپر لے گیا اور میں نے اس کھمبے کو پکڑ لیا۔ جب میں اپنے خواب سے بیدار ہوا تو میں اس باغ کے بیچوں بیچ اس کھمبے کے اوپر گرفت کو تھامے کھڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ وہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، جہاں تک باغ کا تعلق ہے وہ اسلام کا باغ تھا اور وہ ستون اسلام کا ستون تھا، اور فرمایا، وہ سہارا عروۃ الوثقی ہے، وہ قابل اعتماد سہارا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ آپ ان تمام طریقوں کے بارے میں سوچیں جن سے اللہ ہمیں ثابت قدمی کی یاد دہانی کراتا ہے۔ وہ ہمیں سب سے معتبر سہارے عروۃ الوثقی کو تھامنے کا حکم دیتا ہے تاکہ آپ کو نجات مل سکے، کیونکہ یہ دنیا آپ کو دھوکہ دے گی اور آپ کو ہر مقام صحیح اور غلط پر لے جائے گی۔ وہ ہمیں بطور امت اللہ کی رسی کو تھامنے کا کہتے ہیں، کیونکہ دنیا آپ میں تفرقہ ڈال دے گی اور آپ کو اللہ کی اس فضل سے دور کر دے گی جو ہمیشہ ایک قوم کے اوپر رہتا ہے۔ وہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عہد کو مضبوطی سے پکڑ رکھو جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، کیونکہ اسلام کا معاملہ سنجیدہ ہے اور اللہ کے ساتھ دھوکہ ایک مردہ دل سے نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب صبر کرنا سلگتے انگارے تھامنے کے مانند ہوگا، کیونکہ خواہشات آپ کے چاروں طرف ہوں گی اور ان تک رسائی بے حد آسان ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو اس طرح تھامو جیسے کوئی آدمی اپنے دانتوں سے اس کو پکڑتا ہے، کیونکہ آپ دھوکہ دہی کے دور میں زندگی گزاریں گے، اور اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو آپ خود کو بآسانی گمراہی میں ڈوبا پا سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جسے ایک حسین اور مرتبے والی عورت زنا کی طرف بلاتی ہے، اور اس لمحے میں وہ خود کو روکتا ہے اور کہتا ہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس لمحے کی گرمی سے خود کو دور کرنے پر اللہ اس کو عرش کے سائے کی ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ غور کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا تصور کریں جو وقت کے طاقتوروں ترین ظالموں کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق کہتے تھے، یا غزہ کے ان بہادر مرد اور عورتوں کو سوچیں جو ہر روز اپنے ظالموں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں جھکتے۔ وہ اپنی جانیں گنوا سکتے ہیں کیونکہ اپنے سامنے موجود تخت کے دباؤ سے وہ بالکل نہیں ڈرتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کی روحیں فوراً آسمان پر الرحمن کے تخت تک بلند ہو جاتی ہیں تاکہ وہ ہمیشہ تک کے لیے جنت الفردوس میں گھومیں پھریں۔ یہ سب دباؤ کے لمحے کے سوا کچھ نہیں، اور زندگی میں موت کی گھڑی سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں ہے، اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعا کون سی تھی؟ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ لفظ ثابت پر غور کریں، مضبوطی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
अल्लाह ताला मोमिनीन को उस पुख्ता कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से इस दुनिया और आखिरत दोनों में साबित कदमी अता करता है, क्योंकि जैसे आप मौत की तकलीफ और शयातीन के कुफर पर इकसाने के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, आप फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं। लेकिन देखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ दुनिया तक ही महदूद नहीं की, क्योंकि आपको सबात की सबसे ज्यादा जरूरत तब होगी जब फरिश्ते कब्र में आपसे सवाल करने आएंगे। उस वक्त वो किसी भी जालिम से ज्यादा खौफनाक होंगे और वो माहौल पर इस माहौल से ज्यादा होलनाक होगा जिसका आप यहाँ दुनिया में कभी भी सामना करते हैं। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, जब तुम अपनी किसी भाई या बहन को दफनाओ, अल्लाह ताला से उसके लिए साबित कदमी मांगो, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के सख्त तरीन इम्तिहान से गुजरने वाला है। और बात यह है कि आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये इम्तिहान कब आने वाला है। जिस तरह आप रोजाना सोकर और जाग कर जिंदगी और मौत की मशक करते हैं, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हर ईमान की आजमाइश के लम्हे में आप मौत की सख्ती की मशक करते हैं और आपको कुछ नहीं पता कि आप कब मरने वाले हैं और कहाँ मरने वाले हैं। इसलिए आप मौत से पहले के दिनों और लम्हों में इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इम्तिहान लेने वाला कब आकर आपको इस इम्तिहान की खबर दे दे। रूह की रवानगी का एक मुकर्ररा वक्त है जो आपको नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला को मालूम है, और इस शख्स को कोई अंदाजा नहीं कि कब उसकी रूह इस बरज़ख में पहुंचा दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे 38 हफ्तों की हामला माँ नहीं जानती कि उसे कब दर्द शुरू होगा और वो कब अपने बच्चे को जन्म देगी। इमाम अल कुर्तुबा रहीमुल्लाह कुछ शायराना लिखते हैं। वो कहते हैं, हम उन रास्तों पर चलते हैं जो तकदीर ने बनाए हैं और जिनका मुकद्दर है वो उन पर चलते जाएंगे। हमारा रिस्क बिखरा हुआ है, मगर जो हमारा मुकद्दर है वो रोका नहीं जाएगा। अगर मौत जिस खास सरजमीन पर लिखी है तो किसी और जगह उसका आखिरी ठिकाना ना होगा। हम सब के पास ऐसी एक जमीन है जहाँ हमारी रूहें अगली दुनिया में जन्म लेंगी और हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो वक्त आएगा तो अल्लाह ऐन उसी जगह हमारी कोई जरूरत पैदा कर देगा, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो मौत का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज करने के इंतजार में होगा। और इमाम कुर्तुबा रहीमुल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में एक दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन वो एक आदमी के साथ थे जिसने उनसे कहा, या नबीउल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मुझे भारत में एक जरूरी काम है, तो क्या आप हवा को हुक्म दे सकते हैं कि वो मुझे उस लम्हे भारत ले जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते की तरफ देखा तो देखा कि वो मुस्कुरा रहा है। उन्होंने कहा, तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? मौत के फरिश्ते ने कहा, यह हैरत अंगेज बात है, मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं इस घड़ी के आखिर में इस शख्स की रूह को भारत में कब्ज करूं, लेकिन मैंने उसे आपके साथ देखा तो उसने देखा कि हवाएं उस घड़ी में उसे भारत ले गईं और वाकई उसकी रूह वहां से निकाली गई। जब आपकी मौत का लम्हा आपके पास आता है तो कभी ये सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का वक्त और सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का जगहों पर आता है, और इस लम्हे अचानक आप ऊपर देखते हैं तो नजर आता है कि फरिश्ते आपके करीब आते हैं, या तो खुशी से या गुस्से में। उन्होंने एक बार आपके जिस्म में आपकी रूह फूंकी थी और अब वो उसे निकालने के लिए यहाँ मौजूद है। चाहे आपके आसपास कोई भी मौजूद हो, मगर अब आपको सिर्फ वही फरिश्ते दिखाई देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी रूह ईमान वाली है, या तो आप अपनी आखिरी नजर तक फरिश्तों को नूर के साथ उतरते हुए देखेंगे और मौत का फरिश्ता करीब आता है और वो जन्नत की मुश्क की खुशबू से महकता कफन लेकर आता है और वो आपसे कहते हैं, सलाम ए पाकीज़ा जान, मत डरो, अल्लाह की रहमत और रजा की तरफ आओ। आप मुस्कुराते हैं और आपकी रूह आपके जिस्म से बाहर निकल जाती है और आपकी आंखें उसे इस कफन में जाते हुए देखती हैं, उसी रब से मिलने की आरजू में जो उससे राजी हैं, आसमानों की बुलंदियों में जाने के लिए और अपना अजर हासिल करने के लिए तैयार है। इतनी आसानी से जिस्म से निकलती है जैसे पानी का आखिरी कतरा जग से निकलता हो, बगैर तकलीफ और बगैर किसी सदमे के। दूसरी तरफ एक बदकार रूह फरिश्तों को अपने पास आता देखती है जो इंतहाई गुस्से में उसको मारते हैं, तो रूह जिस्म में छुप जाती है और फरिश्ता उसे कांटे से बाहर निकालता है, गोया के मलमल के कपड़े को चीर रहे हैं। बाहर निकलकर इस रब के गजब का सामना करो जिसे तुमने नजरअंदाज किया।
और इन नताइज का जिनके हकीकी होने की तुमको उम्मीद नहीं थी। बस ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से पकड़ो। सबात का लफ्ज, मजबूती का लफ्ज, क्योंकि ये क़यामत से पहले आपके वजूद को सबसे ज्यादा हिला देने वाला लम्हा है। एक फरिश्ते ने एक बार आपके जिस्म में आपकी रूह फूंकी और आपने कुछ महीने मुशक्कत में गुजारे, यहाँ तक कि आप एक मुश्किल मरहले के बाद बाहर निकल आए। इस बार फरिश्ते ने आपकी रूह कब्ज कर ली और या तो वो आसमानों की बुलंदी पर पहुंची तमाम राहतों और यकीन दहानियों को महसूस करने के लिए जिसकी उसे जरूरत होती है, जैसे माँ के पेट में नाजुक बच्चे को होती है, या सबसे निचले मकामात की तरफ जहाँ रूहानी नाकामियों को जाया किया जाएगा। लेकिन फिर आपको बरज़ख में मुंतकिल होना पड़ेगा। आपका दोबारा जन्म शुरू हो रहा है और हर ज़ी रूह को दोबारा जन्म लेने के लिए कब्र में वापस आना है। जैसा कि अल्लाह ने हमसे वादा किया था, वो हमें जमीन पर लौटाएगा जैसे उसने हमें पहली बार उससे पैदा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के दबाव का जिक्र फरमाया और ये कब्र के अजाब से मुख्तलिफ है। साद इब्ने मुआज़ जैसे साले इंसान भी उससे नहीं बच सके, अगरचा उनकी मौत ने अल्लाह के अर्श को हिला कर रख दिया, और ना ही मासूम बच्चा जिसको कभी गुनाह करने का मौका मिला ही नहीं कि उसे सजा दी जाए। लेकिन जब मैयत को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसको उस तरह दबाया जाता है जिससे कोई चाहे बड़ा हो या छोटा, नेक हो या बदकार, नहीं बच सकता। लेकिन कुछ अमल मुश्किल मगर नागुज़ीर हैं और फिर गुनाह की इजाफी मुश्किलात भी हैं। आप देखें, साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक निस्बतन आसान मुशक्कत थी, सिर्फ एक जकड़ के साथ दूसरों की इस अमल में पसलियां कुचली जाती हैं। और ये दो फरिश्ते थे जो अब आपका इम्तिहान लेंगे, और जब आप उठेंगे तो दो फरिश्ते आपके साथ होंगे, और यहाँ तक कि जिस तरह से वो फरिश्ते आपको नजर आते हैं वो भी आपके अमाल पर मबनी है। मुनकिर और नकीर अच्छी शक्ल में आते हैं नेक आदमी के लिए, बदसूरत के लिए बदसूरत शक्ल में। अब आप अमली तौर पर अपने फरिश्तों की तस्वीर खुद बनाते हैं, और नाकाबिले यकीन दबाव है जब वो गूंजती हुई आवाज में कहते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारा नबी कौन है। और इस अजीम दबाव के लम्हे में आप सिर्फ उस सूरत में जवाब दे सकेंगे अगर आप जानते हो कि यहाँ दबाव में कैसे जवाब देना है। बसूरत दीकर आप घबरा जाएंगे और कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर आप साबित कदम रहेंगे तो वो मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आजमाइश पूरी हो जाएगी और आपकी रूह अपनी नई दुनिया में आबाद होने लगेगी जैसा कि वो जिंदगी में आबाद थी, अल्लाह सुब्हान तआला की याद के साथ, ताकि मैं उसमें नेकी करूं जो मैंने छोड़ा है, हरगिज नहीं। ये महज एक बात है जो वो कहेगा, और अब उनके पीछे एक बरज़ख हायल है इस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। अल्लाह हाफिज।